Hello friends, welcome back to the channel. So in this video I'll discuss about the molecularity, difference between the molecularity and the order of the reaction, pseudo first order reaction. Okay. Before discussing these topics, let us take one problem related to what we did till now. Okay, so let's start. So the question is, prove that in first order reaction, the time taken to complete the reaction up to 99.99% is 10 times the half-life of first order reaction. So half-life of first order reaction can be given by 0.693 by K. Also we can write it as 2.303 into 0.3010 by K or 2.303 into log 2, value of log 2 is 0.3010 by K. Okay, this already I have told you. Okay, so you can see my last videos. Now time taken for first order reaction is equal to 1 by K 2.303 log C0 by Ct. Okay. Now what is given in the question? The time taken to complete the reaction up to 99.99%. Okay. So time taken to complete the reaction up to 99.99% will be equal to 1 by K 2.303 log C0 by Ct. So how you have to calculate Ct? Okay. Ct बेसिकली इज कि 99.99% जब मेरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो उसके बाद जो मेरी कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की बचेगी वो कितनी होगी. Ct क्या होता है कि इतना परसेंट रिएक्शन जब मेरा कंप्लीट हो चुका है या फिर जब इतना परसेंट रिएक्टेंट मेरा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है उसके बाद जो मेरी कंसेंट्रेशन रहेगी रिएक्टेंट की वो कितनी होगी Ct. सो इट विल बी इक्वल टू C0 minus 99.9% that is by 100 into C0. ओके, मतलब कि C0 अगर उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन थी और 99% मेरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो मेरी जो कंसेंट्रेशन बचेगी वो कितनी होगी. उस रिएक्टेंट में से ही इतनी कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की ही माइनस करेंगे तब जाके मेरे पास कंसेंट्रेशन आएगी किसकी, रिएक्टेंट की. तो Ct will be equal to C0 minus 99.9 by 100 C0. Okay. It can be written as 2.303 by K log. इसमें से I have taken C0 common. 1 minus 99.9 by 100. Okay. तो C0 से C0 cancel. It will give you 2.303 by K log. ये 100 ऊपर गया. by 0.1. ओके, सो यहाँ पे 0.1 मतलब 1 by 10, तो 10 ऊपर जाएगा तो 1000, तो इट विल गिव यू 2.303 by K log 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 raised to power 3 by 1. ओके, सो इट विल गिव यू 2.303, इस 3 को हम आगे मल्टीप्लाई में लेंगे by K log 10. So log 10 is equal to 1. Okay, 2.303 into 3 by K log 10 is 1. Okay, so this is the value of time taken to complete 99.99% of the reaction. Okay, now what we have to prove is this time period is 10 times the half-life of first order reaction. So half-life is 2.303 into 0.3 by K. Okay. So now if you compare this equation with this equation, then you came to know that here you have to convert this 3 into 0.3. So how it will be 0.303 into 3 by 10 into 10 by K. तो मैंने क्या करा 10 से उसको डिवाइड कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. तो यू विल गेट 2.303 into 0.3
by k into 10, and this is half-life period of first order reaction. So you will get T 99.99% is equal to T half into 10. So time taken to complete 99.99% is 10 times the half-life period of first order reaction. Hence, it is proved. This is very important question, okay? Note it down. The molecularity of the reaction. So first of all, I'll tell you about the definition. The number of reacting species, that is atoms, molecules, ions, participating in the elementary chemical reaction which must collide simultaneously is called molecularity of the reaction. Okay, so now what it means. नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, मतलब यहाँ पे हमें रिएक्टिंग स्पीशीज की बात करनी है, सॉरी स्पीशीज मतलब कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात करनी है. जो भी मेरे रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूलरिटी हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, participating in elementary chemical reaction. Now what is elementary chemical reaction? Which can be completed in one single step. Okay, well, A which gives B. This is a simple step reaction. Okay, but अगर मुझे A से B में जाना है, अगर मैं 2-3 स्टेप मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू A से B में जा रही हूँ, लाइक सपोज A पहले मेरा C में कन्वर्ट हो रहा है, फिर मेरा B में कन्वर्ट हो रहा है, तो मेरे यहाँ पे 2 रिएक्शंस हो रहे हैं. तो दिस इज नॉट एलिमेंट्री रिएक्शन. ओके, सो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एक सिंगल स्टेप होना चाहिए मेरा रिएक्टेंट जिसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, which must collide simultaneously is called molecularity of the reaction. Okay, तो अब देखो, अगर मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ऑब्वियसली अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं मतलब ऑब्वियसली दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर so that they can be converted into products. Okay, so 2-3 main points which is used in molecularity you must know. Write it down. Molecularity can be 3 or less than 3. Okay, now how molecularity can be 3 or less than 3? मोलिकुलरिटी 3 है मतलब कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मेरे या तो 3 हो सकते हैं या फिर लेस देन 3 हो सकते हैं, है ना. इसका मतलब ये मोलिकुलरिटी में मैंने आपको बताया कि हमें रिएक्टेंट स्पीशीज को देखना है, मतलब कि मेरे रिएक्टेंट्स या तो 3 हो सकते हैं या फिर लेस देन 3 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि उनकी कोलाइड करने की, और यहाँ पे इन्होंने एक चीज और बोली है कि साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे एक ही जगह पे कोलाइड करने की उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो जैसे जैसे मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे वो पॉसिबिलिटी मेरी क्या होगी, कम होगी. लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज आप 3 फ्रेंड्स है. ओके, सो 3 फ्रेंड्स में से अगर एक ही फ्रेंड को मूवी देखने जाना है तो उसकी पॉसिबिलिटी वहां पहुंचने की सेम टाइम पे सेम जगह तो वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2 और 3 पर्सन. कैसे? क्योंकि अगर उन 3 फ्रेंड्स में से किन्हीं 2 फ्रेंड्स को जाना है. ओके, सो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि जिस टाइम पे वो पहला फ्रेंड वहां पहुंचा है दूसरा भी उसी टाइम पे पहुंचे, ऐसा नहीं पॉसिबल क्योंकि आप दोनों ने सेम ही जगह से नहीं आना है, उसको भी डिफरेंट जगह से आना है और दूसरे वाले को भी डिफरेंट जगह से आना है, तो सेम टाइम पे पहुंचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है. ऐसे इन द सिमिलर वे अगर आपके 3 फ्रेंड्स ने मूवी देखने जाना है तो पॉसिबिलिटी और भी कम होगी. अगर सिमिलर वे में अगर मैं रिएक्टेंट्स को देखूं, अगर मैं 4 या 5 या 6 रिएक्टेंट्स लूंगी तो उनकी कोलाइड होने की जो
पॉसिबिलिटी है, तो वो कम होती जाएगी जैसे जैसे मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. दैट इज वाई मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी 3 और लेस देन 3. It can never be 0. Negative or fractional. ओके. ऑब्वियसली ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं रिएक्ट करे या नहीं कोलाइड करे टू फॉर्म प्रोडक्ट. अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा ही नहीं तो मेरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो मॉलिक्यूलैरिटी हो, मैंने तुम्हें बताया ना, मॉलिक्यूलैरिटी हम सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से ही फाइंड कर सकते हैं. तो 0 तो वो ऑब्वियसली नहीं हो सकता. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इट कैन नेवर बी 0. तो मॉलिक्यूलैरिटी भी 0, नेगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती. बट अगर मैं इसको कंपेयर करूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ, तो एज आई हैव टोल्ड यू कि ऑर्डर इट कैन बी नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शनल. ओके. नाउ टाइप्स ऑफ molecularity is unimolecular chemical reaction. So example of unimolecular chemical reaction, you can take it as NH4 NO2 gives N2 plus 2H2O. Okay. Here uni means one, मतलब कि एक मॉलिक्यूल या एक रिएक्टेंट जब मेरा किसी केमिकल रिएक्शन में यूज हो रहा है टू कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट इज बायमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन. बाय मीन्स टू, तो जिसमें मेरे 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए. दैट इज 2HI गिव्स H2 प्लस I2. ठीक है. तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2. तो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है. यहाँ पे एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से मेरा प्रोडक्ट बन रहा था, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन थी. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स से मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, तो दैट इज बाय मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन. ओके. And in the same way, trimolecular chemical reactions are very rare. Okay. And as I told you, molecularity can be 3 or less than 3. Okay. It cannot be more than 3, क्योंकि अगर मैं 3 से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लूंगी तो वो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी. उनको मल्टीपल स्टेप्स चाहिए कंप्लीट होने में. उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हो गए, 3 से ज्यादा हो गए. इट विल बी मोर देन 3. ओके. सो विद दिस आई एंड अप विद मॉलिक्यूलैरिटी. तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए कि मॉलिक्यूलैरिटी इन एग्जाम्पल्स में और इन रिएक्शंस में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हेयर इन फर्स्ट एग्जाम्पल मॉलिक्यूलैरिटी will be equal to stoichiometric coefficient is 2 plus 1. So molecularity will be equal to 3. मतलब कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मैंने यूज करे हैं कि मेरा प्रोडक्ट बन जाए. ओके. तो 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर बीइंग यूज्ड. एंड हेयर इन दिस केस अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखें तो हेयर इट इज 1 एंड हेयर हाफ. तो हाफ प्लस 1 विल बी 3/2. बट एज आई टोल्ड यू मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. So how you will get the molecularity in this reaction? Multiply 2H2 plus 2/2 is 1 or 2H2O. मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. So here molecularity will be equal to 2 plus 1 that is 3. Got it? अगर आप इसको 3/2 लिखोगे, इसका फ्रैक्शनल में मॉलिक्यूलैरिटी दोगे तो योर आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शन में होती ही नहीं है. Okay, now here in this example, KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4 gives this product. Okay, so here अगर मैं molecularity की बात करूँ तो अगर मैं stoichiometric coefficient देखूँ, here is 1 plus 6 7 plus 3 10. तो molecularity 10 आ रही है. लेकिन मैंने आपको बोला था कि molecularity या तो 3 होगी या फिर 3 से लेस होगी. उससे ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मेरे नहीं कोलाइड कर सकते, और एक सिंगल स्टेप में तो बिल्कुल भी नहीं. तो इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने के लिए, ताकि मेरा प्रोडक्ट बने, एक सिंगल स्टेप नहीं मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन होगा. ठीक है. कि मे भी ऐसा हो सकता है कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पहले एक मॉलिक्यूल FeSO4 के साथ कोलाइड करे, फिर वो फर्दर. तो ये एक सिंगल स्टेप पॉसिबल नहीं है. इसके लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स चाहिए. तो इसीलिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलैरिटी cannot be defined in this case.
Got it? Okay. So now I will discuss about pseudo first order reaction. तो इसके लिए हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं CH3COOC2H5 that is ester plus H2O which gives CH3COOH plus C2H5OH. ओके, CH3COOH वाटर मॉलिक्यूल का इसने H ले लिया एंड C2H5OH. गॉट इट? ओके, सो इन दिस केस यू कैन टेल मॉलिक्यूलैरिटी विल बी इक्वल टू कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ पे यूज हो रहे हैं, दैट इज 2, तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगी. अब अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं, हम थ्योरेटिकली ऑर्डर को फाइंड नहीं कर सकते. कि आप देख के इसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देख के आप नहीं बोल सकते कि इसका ऑर्डर 2 होगा, 1 होगा या 0 होगा. ओके, सो मॉलिक्यूलैरिटी तो हम थ्योरेटिकली देख के बता सकते हैं, इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को देख के बता सकते हैं, बट हम इसका ऑर्डर नहीं बता सकते. तो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं हम? ऑर्डर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा यहाँ पे? R इज इक्वल टू K CH3COO C2H5 रेज टू पावर 1. तो यहाँ पे मेरा जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं उसमें रिएक्टेंट एक कोई भी एक रिएक्टेंट एक्सेस में ले जाता है. तो यहाँ पे वाटर अगर मेरा एक्सेस में ले रहे हैं तो जो मेरा रेट लो एक्सप्रेशन होगा उसमें वो किस पे डिपेंडेंट होगा? सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, दैट इज CH3COOC2H5. तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1. जिन रिएक्शंस में मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है बट ऑर्डर 1 होता है, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. और उसमें एक कोई भी एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हमारा एक्सेस में लिया जाता है तो उसकी कंसेंट्रेशन पे हमारा रेट लो या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता. तो ऑर्डर हमने रेट लो एक्सप्रेशन के थ्रू निकाला जो कि एक्सपेरिमेंटली, और मॉलिक्यूलैरिटी हमारा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स या रिएक्शन को हम देख के बता सकते हैं कि इस रिएक्शन की ये मॉलिक्यूलैरिटी होगी. ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Order, it can be find out experimentally, as I told you, it can be find out experimentally. Okay, और अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो इट कैन बी फाइंड आउट थ्योरेटिकली. ओके, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल. But molecularity, it can never be 0, negative or fractional. Okay, and order can be find out experimentally through rate law expression. Like अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ A plus B it gives C, so इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू रेट लो एक्सप्रेशन? K concentration of A raised to power X, concentration of B raised to power Y. तो order will be equal to X plus Y. And molecularity A plus gives, तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूलैरिटी क्या यही है ना कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होना चाहिए. तो मॉलिक्यूलैरिटी इस केस में क्या होगी? A plus B. ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कि मेरा रिएक्शन में स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है उस बेसिस पे हम ऑर्डर फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी हम उस बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इट कैन बी फाइंड आउट बाय स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन. यू कैन राइट इट डाउन. ओके, नेक्स्ट इज इट कैन बी फाइंड आउट for elementary as well as complex reactions.
लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ हम एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, जो सिंपल रिएक्शंस होती है, मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ हम उन्हीं रिएक्शंस की फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो आवर लास्ट पॉइंट इज ऑर्डर कैन बी फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, or you can say n is equal to 1, 2 up to so on n. ठीक है, and here n is order of reaction. Whereas molecularity, it can be 3 or less than 3. Can be 3 or less than 3. ठीक है, क्योंकि 3 से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड सिंगल स्टेप में नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स चाहिए. बट मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ हम एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही कंसीडर करते हैं. ओके, सो विद दिस आई एंड अप माय वीडियो. होप यू पीपल लाइक इट. बाय बाय फ्रेंड्स.